آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک اسٹوڈیو سے نکل کر یہ پیچھے ایک جہاز اور میں خود کس ماحول میں آ چکی ہوں. تو میں آج آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کر آئی ہوں اور اسی سرپرائز پر آپ کو لے کر جا رہی ہوں. ایسا سرپرائز ہے جہاں ایکچولی زمین سونا اگلتی ہے. ناظرین، قدرت نے کیا جس سرزمین کو، جس مٹی کو مالا مال، وہ الحمدللہ میرا وطن ہے. چاول، کپاس، گندم، مکئی، دودھ کی پیداوار میں یہ سرزمین، یہ وطن عزیز، یہ پاکستان ٹاپ 10 میں ہے. اور اب تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ جس مقام پر، جس جگہ پہ میں موجود ہوں، یہ جو زمین ہے یہ سونا اگلتی ہے. اور اس زمین کو ریکوڈک کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سونے کے ذخائر ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ہیں. اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو الحمدللہ، جس طرح سے میں نے آغاز میں بتایا کہ کتنی ساری چیزوں میں ہم ٹاپ 10 میں ہیں، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا سگ بیل بھی ہوگا اور یہ اس فہرست میں بھی شامل ہو جائے گا. ذرا تھوڑے سے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تاحد نگاہ پھیلی ہوئی یہ جو سونے اور تانبے کی کانیں ہیں، جس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 33 لاکھ ایکڑ کا ہے. ایک سال کی اگر ناظرین یہاں پر بات کی جائے تو سالانہ 7,800 کلو گرام سونا اور 1,900 کروڑ کلو گرام تانبے کی پیداوار یہاں سے متوقع ہے. پہلے تو اپنا تعلق بتائیے. بلوچستان سے ہیں آپ؟ بلوچ بیٹے ہیں؟ جی، میں بلوچستان سے ہوں اور بلوچستان کے ڈسٹرکٹ تربت سے میرا تعلق ہے. میں ایز اے سینئر جیولوجسٹ کے طور پہ یہاں اپنا کارکردگی سر انجام دے رہا ہوں. ہاں ٹھیک. تو کیا فیل کرتے ہیں جب یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس موسم میں کام کر رہے ہیں یا گرمی میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو تجربہ کیسا ہوتا ہے اور سوچ کیا رہے ہوتے ہیں؟ میڈم، بیسیکلی جیولوجسٹ کا کام ہی صحراؤں، ریگستانوں میں سردی گرمیوں میں گھومنا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے جو TCC کا سیشن تھا ابھی ہم شامل تھے. تو مطلب یہ انوائرمنٹ ایک جیولوجسٹ کے لیے تو نارمل ہے، لیکن ایک عام بندے کے لیے بڑا سخت انوائرمنٹ ہے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بھلے جب سینڈ چلتی ہے، سینڈ ڈیونس ہوتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں، سردی ہوتی ہے تو بہت سخت سردی ہوتی ہے. تو مطلب جو عام بندہ جس نے نہ دیکھی ہو تو اس کو سردی افیکٹ کرتا ہے، بیمار کرتا ہے. وقت گزر رہا ہے، ویسے ویسے سردی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے میرے پراپس میں، ونٹر پراپس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر ہے. ڈائیورس نیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، تو لرننگ بہت زیادہ ہے. جو سکلز، جو ٹریننگز ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کتنی خواتین ہوتی ہیں ایک وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہاں پہ جو کوٹا ہے خواتین کا وہ 25% ہے. پروجیکٹ کے آنے کے بعد بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور یوتھ کے لیے اسپیشلی اٹس اے بلیسنگ. یہاں پہ ہر کسی کو جو ہے ہر فیلڈ کے لوگوں کو جابز مل رہی ہے. اور یہ اب تک نہ ہم صرف اس کیمپ کی تعداد جو لگ بھگ کوئی 700 تک ہے، لیکن یہ اب مزید کمنگ 2 سے 3 سال کے بعد یہ 8,000 تک چلی جائے گی، جب ہمارا ایک پورا ولیج بن جائے گا اور ہماری جو کنسٹرکشن پوری ہو جائے گی. ریکوڈک میں کام کرنے والے خواہش مند نوجوانوں کے لیے خصوصی تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تربیت مکمل کرنے اور اس کا امتحان لینے کے بعد انہیں روزگار فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کو عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے بیرک گولڈ کے دیگر ممالک میں جاری منصوبوں پر بھیجا جاتا ہے. منصوبے کے تحت انڈس اسپتال کے تعاون سے نوکنڈی میں ایک ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جو 80,000 کی آبادی کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مارک برسٹو موجود ہیں، جو کہ بیرک گولڈ کے CEO ہیں، اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہی ہمیں زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مارک. فرسٹ آف آل when we talked about sir, جب ہم سونے اور کان کنی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی کا شمار صف اول کی کمپنیز میں ہوتا ہے. آپ کے پاس دنیا کے کئی خطوں میں کام کا وسیع تجربہ ہے. وہ کیا چیز ہے جو ریکوڈک کو دیگر منصوبوں سے منفرد بناتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم ہمیشہ معیاری ذخائر کی تلاش میں ہوتے ہیں. ریکوڈک کا شمار دنیا بھر میں سونے اور تانبے کے بڑے ان ڈیولپ ذخائر میں ہوتا ہے.
बैरक गोल्ड और रेकोडेक की तवील तारीख है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये एक सफर है पाकिस्तान के अवाम और खास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम के साथ हाथ मिलाने का, और इस मंसूबे की तामीर जो हमें दुनिया को स्ट्रेटेजिक धात तांबा फराहम करने के काबिल बना सके और इससे वस्ती एशिया के तमाम स्टेक होल्डर्स फायदा उठा सकें। And benefit all the stakeholders here in this part of Central Asia. All right. But let me know, sir, as we know, बिल्कुल ठीक। जैसे कि आप जानते हैं कि मंसूबे से प्रोडक्शन का आगाज़ सन 2028 में होना है, लेकिन अब तक जो काम हुआ है यह जारी है। आप उसकी रफ्तार से मुतमईन हैं? progress so far? Yes, and we've already started the project. So जी बिल्कुल, it's on हम its दुरुस्त way. सिमत में जा रहे हैं। 2028 में बहुत कम वक्त रह गया है, 2028. और जैसा कि आपके इल्म में है कि रेकोडेक दुनिया की इंतहाई बड़ी कानों में से एक होगी जिसको इंतहाई कलील वक्त में डेवलप किया जाएगा, Period of time. Why? Because क्योंकि हमारी हकीकी शराकत दारी है पाकिस्तानी हुकूमत, उसकी अवाम, Pakistan बलोचिस्तान की हुकूमत और उसकी अवाम के साथ। and also the Balochistan government हम रेकोडेक से हासिल फवायद अपने शराकत दारों के साथ बांटेंगे। the benefits of दर हकीकत हमारे शराकत दारों पाकिस्तान और बलूचिस्तान को हमसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा Balochistan and Pakistan. जब वो टेक्नोलॉजी और इस तरह के बड़े मंसूबे को डेवलप करने की काबिलियत हासिल करेंगे। Who are the ones that bring the technology and the ability to develop such a big project? What is the इस current वक्त मंसूबे से रोजगार के कितने मौके पैदा हुए हैं, और जब यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होगी उस वक्त नौकरियों का तखमीना क्या है? So we're in the process of अभी हम रोजगार पैदा करने के अमल में हैं, और इस वक्त हमने जो रोजगार फराहम किया है to date we have उसमें 79% बलूचिस्तान के लोग हैं, 80%, 79 to be और जब हम काम के उरूज पर होंगे तो उस वक्त 7,500 लोग इस साइट पर काम कर रहे होंगे, the peak of construction. और जब काम डेवलप हो जाएगी तो काम शुरू होगा Working on the site. तो हमारे पास 3,500 मुस्तकिल मुलाजिम होंगे। And we go to normal operation. लेकिन मेरे ख्याल में 3,500. अहम ये है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान भर में तकरीबन 25,000 लोग रेकोडेक से मुंसलिक होंगे। The multiplier effect is about 25,000 people we expect to be associated with Recodec. Thank you so much. Thank you so much for your time. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वो यहाँ पर मिल गए हैं और जिस तरह से वो हमें चीज़ें बताएंगे उनसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। इंतहाई मोहतरम जनाब सरफराज बुगटी साहब साथ मौजूद है, वज़ीर आला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो मंसूबा है रेकोडेक, सर इससे पाकिस्तानी आवाम को और वफाकी हुकूमत को बड़ी उम्मीदें हैं। साल साल से हम रेकोडेक सुनते आए हैं, अब उम्मीदों का महवर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन बुगटी साहब, सूबा और स्पेशली सूबे की आवाम कैसे देखते हैं इस मंसूबे को, और अब जो काम बेसिकली हो रहा है उसको? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया और आप इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाई और अपनी आंखों से जो एक डेवलपमेंट या एक प्रोग्रेस जो स्टार्ट हुई है उसको देख रही हैं। देखिए, माइनिंग सेक्टर में बड़ी कैपेसिटी है बलूचिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैप करके पड़े हुए हैं और उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उसको डिस्पाइट मैनी रीजंस, उसकी सबसे बड़ी रीज़न शायद हमारी अपनी कैपेसिटी या स्किल भी वो माजी की गलती है। आप कुछ भी कह दें, लेकिन थैंक्स गॉड कि अब आके एक वो ट्रैक पे चल पड़ा है। और इधर सिर्फ ये बैक गोल्ड नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं जो यहाँ पर लार्ज स्केल माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इसी के साथ रेकोडेक के साथ देयर इज़ अनदर प्लेस व्हिच इज़ कॉल्ड सियाडेक, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी लोकल पार्टनर्स के साथ दे आर आल्सो कमिंग। सो ये एक पूरे रीजन में एक एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, और इस एक्टिविटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन इमेजिन कि इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो हमारे PSDP का साइज़ है, जो अवेलेबल बजट है दैट इज़ 210 बिलियन रुपीज़, और इससे हमें अगले कुछ 4-5 सालों बाद इनिशियली जो फर्स्ट स्टेज में तो $1 बिलियन, दैट मीन्स कि 280 अरब रुपए मिलने के चांसेस। तो दैट मीन्स कि ये सारा दिस विल बी अ गेम चेंजर, this region will be a game changer for not only for Balochistan but in fact for Pakistan. For Pakistan, for sure, sir, इंशाल्लाह। जी बताइए, 25%
जो शेयर मिल रहा है बलूचिस्तान को, मुतमईन है लोग इससे? देखिए, एक तो हमारी इक्विटी इज़ लैंड, उसके अलावा तो हमारी इक्विटी नहीं है, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इतना अरसा ये कोर्ट की नज़र रहा, ये प्रोजेक्ट सारा एक डेड हॉर्स बन गया, और फिर इंटरनेशनली हमें बड़ी सुबकी भी हुई और हम केसेस भी करते रहे। फाइनली सेंस प्रिवेल्ड और हमने जो नेगोशिएशंस की और उसके ज़रिए जो वो आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि 25% एक बहुत मेजर शेयर है, एक मेजर पार्टनर है हम रेकोडेक में। तो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी पॉजिटिव, एवरीवन अराउंड इज़ हैप्पी। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोसाइटी में जो लोकल पॉपुलस है उसकी हार्ट एंड माइंड विनिंग जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके लिए द वे द कंपनी इज़ डूइंग, वो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने जो कम्युनिटी इंगेजमेंट की हुई है, जो फिर कम्युनिटी के लिए जो एक स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग स्कूल, और फिर आप देखिए कि आज हमारे बलूचिस्तान के यंग बच्चे और बच्चियाँ जो इंजीनियर्स हैं, दे आर गोइंग टू अर्जेंटीना एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेंगे, एंड देन व्हेन दे विल कम बैक तो वो इसी कंपनी में सीनियर पोजीशंस में होंगे और बलूचिस्तान के लोग डिसीजन मेकिंग में होंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग साइंस है फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ चागी। सर, काम का आगाज़ कब से हो रहा है? अभी तो स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके साथ साथ आगे पीछे ताकि लोगों की जो लाइफ हो यहाँ पर, उसके लिए चीज़ें हो रही है, लेकिन प्रॉपर जो माइनिंग का आगाज़ होगा वो कब से हो रहा है? ये पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि नॉर्मली कंपनीज पहले अर्न करना स्टार्ट करती है, फिर एक्सपेंडिचर्स करती है। दिस टाइम वी आर विटनेसिंग कि कंपनी पहले से ही CSR में काम कर रही है, अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। प्रॉब्ली 2028 तक ये माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर स्टेज वाइज ये और ग्रो करेगी। 28-29 में मेरा ख्याल है कि ये आगाज़ हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो आगाज़ हो गया। इनिशली रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दिस ईयर, एंड जो लोग असल चीज़ होती है जॉब क्रिएशन जो यहाँ पर नज़र आ रही है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, वो कि सब 35% के शेयर्स जो रह गए हैं पाकिस्तान के पास, आप नहीं समझते कि आगे क्या फैसला साजी में कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी हमें? मेरा नहीं ख्याल बिकॉज इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोर्ट्स हैं, एवरीवन इज़ ऑन बोर्ड। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इकनॉमिक फ्यूचर्स की जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी ये भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव तरीके से फ्यूचर में सर, ये तो हमारे सामने है कि ये ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा और हम भी पढ़ते आए हैं रेकोडिक को, कि आज आके पता चला कि ये क्या है रेकोडिक, लेकिन पढ़ते और देखते तो हम आए हैं और साल का पाकिस्तान का ये एक इशू रहा है। ये शायद बहुत पहले मामला हल हो जाता, लेकिन आपने जैसे आगाज़ में बात की कि बहुत कुछ हम होता रहा, हम करते रहे और अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर हम देख रहे हैं काम का आगाज़ हो गया। क्या समझते हैं, किसको क्रेडिट देंगे आप ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस पर? देखिए, नेशन का क्रेडिट है इस पर। फेडरल गवर्नमेंट, उस वक्त की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान की मिलिट्री साइड में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनका बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बड़ा पॉजिटिव रोल है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू प्रोवाइड एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट। स्पेशली फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान वो सिक्योरिटी देख रही है, तो ये एक होलसम क्रेडिट है, तो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। मैं समझता हूँ ये नेशन का क्रेडिट है और इस तरह की चीज़ें जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल। इस आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ख़वातीन का मैंने बड़ा अहम रोल यहाँ पर देखा और मुझे ये जानकर भी बड़ा अच्छा लगा कि बाकायदा तौर पर ख़वातीन के लिए एक कोटा रखा हुआ है और मुझे नज़र आया उनके अंदर वो जोश और वो जज्बा जो यहाँ पर देखा मैंने। चागी से बच्चियाँ आई हुई हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों से मैंने यहाँ पर देखा। उन बच्चियों को आगे लाने के लिए और बलूचिस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का कल्चर है, वहाँ पर हमने देखा है कि बच्चियाँ थोड़ा पीछे रहती हैं, लेकिन अब उनको आगे लाने के लिए भी काम हो रहा है। तो मज़ीद उसके लिए क्या आप क्या क्रिएट कर रहे हैं या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन के लिए? देखिए, ख़वातीन सोसाइटी का सबसे अहम हिस्सा है और बलोच सोसाइटी या बलूचिस्तान की सोसाइटी कभी भी कंजर्वेटिव नहीं रही, वो लिबरल सोसाइटी है और हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट पे ट्राइबली यहाँ पर काम होता रहा है और आज भी वुमेन को, ख़वातीन को इनकरेज किया जा रहा है। आपको सुन के ये भी खुशी होगी कि इस वक्त हमारे 4
डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं दे आर फीमेल डिप्टी सल्फियान बने हुए हैं और वो किसी और प्रोविंस में नहीं है इस तरह, तो वो और दूर दराज इलाकों में सर्व कर रही। और लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दे आर फार बेटर देन आवर मैन डिप्टी कमिश्नर। सर अगर कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसी खुशखबरी जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए आप देना चाहें? नौकुंडी में हमने आज प्लान किया है कि हम यहाँ पर एक तो टाउन कमेटी इसको अनाउंस कर रहे हैं, और सेकेंडली हम यहाँ पर बिजली का तरसीली निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सोलर पार्क और यहाँ पर विंड कॉरिडोर से, बिकॉज यहाँ पर विंड कॉरिडोर बड़ा अच्छा है, तो इन दोनों की फिजिबिलिटी करा के वट एवर सूट्स अस, हम इंशाल्लाह ताला इस साल के बजट में हम नौकंडी के लिए मुकम्मल बिजली का बंदोबस्त कर रहे हैं हर घर के लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जो कुछ इस वक्त हो रहा है तो पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए न सिर्फ ये बहुत खुशी की बात है, बल्कि वो उस उम्मीद के साथ और उस जज्बे के साथ ही आपकी तरफ देख रही है, बलूचिस्तान की तरफ देख रही है कि इंशाल्लाह यहीं से ही पाकिस्तान की मजीद तरक्की का सफ़र शुरू होगा। थैंक यू सो मच सर आपका। नाज़रीन, जब ज़मीन में छुपे राज, ज़मीन में छुपे अल्लाह ताला के ख़जाने जब आश्कार होते हैं तो उसको मटेरियलाइज होने में, मटेरियलाइज करने में, क्योंकि इंसान ने मटेरियलाइज करना है तो ज़रा वक्त दरकार होता है, टेक्नोलॉजी ने उसको मटेरियलाइज करना है तो ज़रा वक्त दरकार होता है, और उस पर कभी कभी दिहाइयाँ भी लग जाती हैं। आज हम रेकॉर्डिंग पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कितना माला माल रखा हुआ है ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन अब जो इसके समरात हैं वो आवाम तक पहुंचने में बस अब ज़रा सी दूरी रह गई है। वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है कि जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा और बलूचिस्तान से पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ेगा और यूं ही आगे फलता फूलता रहेगा।